Chapter number 2. Parallels and Meridians. A globe is a small model of the Earth. When we look at the globe, we see several countries and places marked on it. To find any place on a globe or a map, we use a system of imaginary lines which run from east to west and north to south on them. These imaginary lines are known as latitudes and longitudes. The point on the north where the longitudes join is called the North Pole, and the point on the south where they joined is called the South Pole. Parallels of latitudes. Look at the globe. Can you see the lines that run in the east-west direction? The full circles that run from east to west are called parallels or lines of latitude. An imaginary line drawn midway between the North Pole and the South Pole divides the Earth into two equal parts. This line is the longest line of latitude and is known as the equator. The part of the Earth from the equator to the North Pole is called the Northern Hemisphere, and the other half from the equator to the South Pole is called the Southern Hemisphere. Facts about parallels. There are 181 parallels or lines of latitude. The equator is the most important of all and is also called the Great Circle. All parallels are full circles except the North Pole and the South Pole, which look like points. The length of the parallels keeps decreasing as we move away from the equator and go towards the poles. All parallels are at an equal distance from each other. Like parallel lines, these parallels or lines of latitudes also do not meet each other. Numbers of latitudes. Lines of latitudes are labeled in degrees, written as 0 degree. The equator is at 0 degree, and the other parallels are marked from 0 degree to 90 degree. The parallels are also marked as N or S according to their location, apart from their value. The North Pole is written as 90 degree N. The South Pole is written as 90 degree S. There are 90 parallels in the Northern Hemisphere and 90 parallels in the Southern Hemisphere. The parallels are drawn at an interval of 1 degree. Important parallels. You already know about the equator, 0 degree, North Pole, 90 degree N, and the South Pole, 90 degree S. There are 4 other important parallels. They are called Tropic of Cancer, 23.5 degree N, Tropic of Capricorn, 23.5 degree South, Arctic Circle, 66.5 degree North, Antarctic Circle, 66.5 degree South. Longitudes. There is another set of lines which run from north to south on the globe. These lines are known as meridians or lines of longitude. Meridians are imaginary lines that run from north to south. Facts about meridians. All meridians or lines of longitude are of the same length. Meridians help to measure distances in the east-west direction. Meridians cut the parallels at right angles, 90 degrees. The longitudes do not run parallel to each other, but meet at the two ends. The maximum distance between any two meridians is the equator. As one moves away from the equator and goes towards the poles, the distance between any two meridians decreases. Numbering of meridians. The prime meridian passes through Greenwich. It is also known as the Greenwich Meridian. It is the starting point for numbering the meridians. It is marked as 0 degree. The longitude of a place is measured east or west of the prime meridian. It divides the Earth into two halves, the Eastern Hemisphere and the Western Hemisphere. A full circle is made up of 360 degrees. Meridians are drawn at an interval of 1 degree. There are 180 meridians towards the east of the prime meridian and 180 meridians
towards the west of the prime meridian. This makes a total of 360 meridians. The meridians in the east are marked as capital E, and those towards the west are marked as capital W. The meridians of 180 degree east and 180 degree west form the same line known as the International Date Line. स्टूडेंट्स, आपने जैसे कि देखा कि वीडियो में किस तरह से पूरा हमको एक्सप्लेन किया है, तो सबसे पहले मैं आपको ये फ़ोटोज़ एक्सप्लेन करूँगी, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो सबसे पहले लैटिट्यूड्स यानी जो स्लिपिंग लाइंस आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है, लेटी हुई लाइनें यानी लैटिट्यूड्स। साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारी अर्थ एक सर्कल बॉल की तरह है, स्फीयर। तो अगर हम उस पे कोई प्लेस लोकेट करना चाहते हैं या तो किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, तो ये कन्फ्यूजन था। इसके कारण हमने एक अरेंजमेंट किया जिसमें अर्थ का कंप्लीट नॉर्थ पोल से साउथ पोल का पूरा डिस्टेंस नाप के उसको इक्वल्स इमेजनरी लाइंस, यानी कि हमने अर्थ में रियल में ऐसी कोई लाइंस ड्रॉ नहीं किए, लेकिन उसको एक मैप में समझने के लिए इस तरह से इमेजनरी लाइंस ड्रॉ किए। तो सबसे पहले लेटी हुई स्लिपिंग लाइंस ड्रॉ की जिसको नाम दिया लेटिट्यूड्स। अब इस लेटिट्यूड्स को हमने नंबर कैसे दिया, तो अर्थ का शेप कैसा है, स्फीयर है। तो स्फीयर, तो आप जब मैथ्स में पढ़ोगे ज्योमेट्री, उसमें आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्रोट्रैक्टर करके हाफ सर्कल आता है, उसके अंदर सारी अलग अलग डिग्रीज दी होती है। वो किसके लिए होती है, तो इसी तरह सर्कल्स की सारी डिग्रीज और कॉर्नर्स को नापने के लिए प्रोट्रैक्टर होता है। तो इस प्रोट्रैक्टर को हम इक्वेटर पे एग्जिट रखेंगे और उसके बाद 0, 1, 2, 3 ऐसे ऊपर तक 90 डिग्री तक जाकर इस तरह से लेटिट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह उसी प्रोट्रैक्टर को हम उल्टा रख के फिर से 0 to 90 डिग्री रख के ऐसी 90 लाइंस बनाएंगे, यानी बीच में जो सबसे बड़ी लाइन है वो होगा इक्वेटर और उसके आजू बाजू जो 90 लाइंस बनेगी उस तरह से 180 डिग्री। तो इस तरह से टोटल 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 सदर्न हेमिस्फीयर में हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो बीच में इक्वेटर यानी टोटल 181 लैटिट्यूड्स हमने अर्थ पे ड्रॉ किए हैं, मतलब इमेजनरी लाइंस हमने इस मैप में ड्रॉ किए। उसके बाद आप लॉन्गिट्यूड्स देख सकते हो, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो हमने स्टैंडिंग लाइन, खड़ी लाइन, लॉन्ग लाइनें खींची हैं, इमेजनरी लॉन्ग इमेजनरी लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। इस तरह से इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करने के बाद एक ग्रिड बनती है। इस तरह से सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स अर्थ पे ड्रॉ करने के बाद देखो अर्थ पे अलग अलग स्क्वायर्स की एक ग्रिड बनती है और इस ग्रिड में हर बॉक्स में आपसे देख सकते हैं कि अलग अलग प्लेसेस हम लोकेट कर सकते हैं और इस हर लाइन, इस स्क्वायर की हर चारों लाइन का एक एक नाम आता है। अब अर्थ का जो मेन पॉइंट अप साइड नॉर्थ साइड है उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल और साउथ में जो है वो साउथ पोल। तो अर्थ जो घूम रही है वो इसी एक्सिस पे, एक्सिस यानी एक इमेजनरी लाइन जिस पे अर्थ रोटेट करती है, अपनी प्लेस पे रोटेट करती है, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अर्थ की एक्सिस हम इस तरह से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इमेजनरी एक्सिस इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सबसे पहले हम लैटिट्यूड स्टार्ट करेंगे। तो लैटिट्यूड्स हमने अर्थ को पहले मिडल में से इक्वल हाफ पार्ट करेंगे और जो बड़ी लाइन आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड्स है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। अब आप देख सकते हो इक्वेटर से लेकर ऊपर नॉर्थ पोल तक का पूरा जो हाफ पार्ट है हेमिस्फीयर, तो इसको ये नॉर्थ साइड का जो हेमिस्फीयर है दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ का इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है।
अब आपकी स्क्रीन पे जो इक्वेटर से लेकर साउथ साइड में सदर्न हेमिस्फीयर, जो हाफ हेमिस्फीयर आधा गोला जो बनता है, दैट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर से लेकर साउथ पोल तक का पूरा अर्थ का नीचे का हिस्सा जिस तरह से आपकी स्क्रीन पे येलो लाइन से हाईलाइट किया है, दैट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो लाइन बनाई है वो स्लांटिंग बनाई है, थोड़ी सी टिल्टेड है। ये क्या दिखाती है कि हमारी अर्थ एग्जैक्ट सीधी नहीं घूमती है, वो अपनी एक्सिस से थोड़ी टिल्टेड घूमती है, यानी उसकी जो एक्सिस है वो सीधी नहीं है लेकिन थोड़ी सी टिल्टेड है। अगर हम खड़े खड़े घूमते हैं तो हमारी जो एक्सिस बनेगी वो क्या बनेगी, सीधी बनेगी, लेकिन अर्थ सीधी नहीं घूमती है लेकिन थोड़ी सी टिल्टेड होके झुकी हुई घूमती है। इसीलिए इस पिक्चर में हमने नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो एक्सिस दिखाई है वो थोड़ी सी टिल्टेड है। तो आपको भी ये याद रखना है कि अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है। स्टूडेंट्स, अब हम सारे लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे जनरली 181 लैटिट्यूड्स हमने ड्रॉ किए हैं अर्थ पे, लेकिन इन सब सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास इस पिक्चर में हमने इम्पोर्टेंट दिखाए हैं क्योंकि इन लैटिट्यूड्स के कारण अर्थ एक क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड होती है, जो आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके लिए खास इस 7 लैटिट्यूड्स को आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहला मिडल में आप देख सकते हो 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी 0 डिग्री पे जो लाइन है दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर। उसके बाद ऊपर जाते जाओगे 1 2 3 4 5 ऐसे 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ साइड में, तो उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो आर्कटिक सर्कल जिसकी 66.5 डिग्री नॉर्थ उसकी नंबर है, और उससे सबसे ऊपर पॉइंट पे जाओगे नॉर्थ पोल जिसकी डिग्री है 90 डिग्री नॉर्थ। अब उसी तरह सेम वापस हम इक्वेटर से शुरू करके नीचे की तरफ जाएंगे सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसकी डिग्री है 23.5 डिग्री साउथ, एंड एंटार्क्टिक सर्कल है जिसकी डिग्री है 66.5 डिग्री साउथ, और सबसे एंड पॉइंट पे जब साउथ पोल के पास जाएंगे तो दैट इज 90 डिग्री साउथ। अब आप बोलोगे ये एन और एस क्या है? तो हमने जब हेमिस्फीयर को डिवाइड किया तो 0 डिग्री इक्वेटर बनाया, उसकी ऊपर की साइड नॉर्थ साइड जो जाते हैं उनको भी 1 to 90 नंबर दिए, और नीचे की साइड को भी हमने 1 to 90 नंबर दिए हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि दोनों साइड 0 से लेकर 90 डिग्री आ रही है, तो हम कंफ्यूजन हो जाएंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों को सरनेम दे दी है, नॉर्थ एंड साउथ। साउथ साइड वाले 0 to 90 साउथ गिने जाएंगे और नॉर्थ साइड के 0 to 90 नॉर्थ गिने जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में 2 सेम बॉय या गर्ल सेम नाम वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्या गढ़वी एंड आर्या 2 हैं, एक बॉय भी है एक गर्ल भी है। तो आप क्या करोगे, दोनों को सरनेम से पहचानोगे, एक आर्या गढ़वी है और एक आर्या मिश्रा है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमने जब 2 सेम डिग्री आई, 0 to 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में भी है, 23 डिग्री साउथ में भी है, तो नॉर्थ वाले को एन सरनेम दे दी और साउथ वाले को एस सरनेम दे दी। तो इस तरह से आपको नंबरिंग याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स यानी मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हमने कैसे ड्रॉ की है, तो इसको नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक लाइन सारी खींची है, लॉन्ग लाइन। अब ये लॉन्ग लाइन यहाँ सामने आपको दिख रही है, पर उसके एग्जैक्ट पीछे भी ये लाइन ड्रॉ की हुई है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले लॉन्गिट्यूड्स को भी नाम दिया है, लेकिन उसको कौन सी सरनेम दी है, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इस तरह से लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ में भी ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जब हम इस तरह से खड़े खड़े नॉर्थ से साउथ में एक लाइन खींच के अर्थ के 2 इक्वल हिस्से करेंगे तो वहाँ पे अर्थ का 2 हेमिस्फीयर होगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसके कारण उस पे जो हम लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करेंगे वो भी क्या बनेंगे, उनकी भी 2 सरनेम लगाएंगे,
0 डिग्री बीच में आएगा और फिर 1 डिग्री ईस्ट 1 डिग्री वेस्ट, उसी तरह 180 डिग्री तक हम दोनों साइड खींचेंगे। और याद रखना कि 180 डिग्री एक ही है जिसको दोनों नाम मिलेंगे 180 ईस्ट और 180 वेस्ट। ये जब आप ड्रॉ करोगे तभी आप समझ पाओगे। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों ड्रॉ करने के बाद अर्थ पे एक ग्रिड बनती है, एक नेट बनती है। और आप ध्यान से देखोगे तो सारे लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, इसलिए हर जगह पे स्क्वायर कॉर्नर बन रहे हैं जो सारे कॉर्नर्स 90 डिग्री पे ये लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्रिड बनती है, इस ग्रिड के थ्रू हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस बॉक्स, आप कोई भी एक बॉक्स को पकड़ोगे तो उसमें दो जो लैटिट्यूड्स आएंगे उन दोनों लाइंस को लैटिट्यूड का नंबर देंगे और दो जो स्टैंडिंग लाइन आएगी तो उसको लॉन्गिट्यूड्स के नंबर के थ्रू उस प्लेस को हम लोकेट कर सकते हैं। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि अर्थ को हमने एग्जैक्ट 0 डिग्री मेरिडियन दिखाया, उसकी ईस्ट साइड में ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट साइड में वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ईस्ट साइड में जितनी लाइन्स है उन सारी लाइन्स को हम 1 डिग्री ईस्ट 2 डिग्री ईस्ट 3 डिग्री ईस्ट ऐसे नंबरिंग देंगे। उसी तरह ऑपोजिट वेस्ट साइड में जितनी भी लाइन्स है उन सारी लाइन्स को हम नंबर देंगे 1 डिग्री वेस्ट 2 डिग्री वेस्ट 3 डिग्री वेस्ट। वेस्ट यानी ईस्ट और वेस्ट वर्ड जहाँ पे आएगा वर्ड मीन्स वो लॉन्गिट्यूड है, और साउथ एंड नॉर्थ आएगा तो मीन्स वो लैटिट्यूड्स है। तो इस तरह से आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के नंबर्स याद रखने हैं। अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर है, तो हमने जब उसको हेमिस्फीयर में कट किया तो ऊपर जो एक सर्कल बनता है, और मैथ्स में आपको मैम ने सिखाया होगा कि सर्कल की टोटल डिग्री कितनी होती है, तो 360 डिग्री होती है। अब इस सर्कल को हम 360 डिग्री में डिवाइड करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। यहाँ पे हमको क्या करना है, आप एग्जैक्ट 0 डिग्री फोटो में देखिए, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में कौन सी डिग्री है, तो 180। यानी कि टोटल हमारे पास कितने लॉन्गिट्यूड्स हमने बनाए हैं, 180। यानी 180 नंबर एक ही बार आएगा। जो ईस्ट साइड से जाओगे तो भी 180 एक ही बार है, और वेस्ट साइड से जाओगे तो भी ऑपोजिट साइड में 180 नंबर। यानी कि ईस्ट और वेस्ट में 1 से लेकर 179 हम ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर सकेंगे, लेकिन जब 180 डिग्री पर पहुंचेंगे तो 180 डिग्री एक ही है, क्योंकि उसके ऑपोजिट सामने वाली डिग्री को हमने क्या नंबर दिया है, 0 डिग्री। इसलिए 180 ईस्ट और 180 वेस्ट दोनों सेम रहेंगे, और इसी 180 डिग्री को हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें, इस सर्कल को समझने के लिए आप एक बार खुद अपनी रफ नोट में ड्रॉ करके 180 तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप 180 तक पहुंचोगे तो 1 से लेकर 179 ड्रॉ करोगे, और 180 कौन बनेगा, एग्जैक्ट 0 के सामने वाला। उसी तरह वेस्ट साइड से जाओगे तो 1 डिग्री वेस्ट 2 डिग्री वेस्ट 3 डिग्री ऐसे 179 वेस्ट तक जाओगे और पहुंचोगे कहाँ पे, 180। तो 180 कौन है, एक ही डिग्री है, जिसको हम ईस्ट 180 ईस्ट भी बोल सकते हैं और 180 वेस्ट भी बोल सकते हैं, और यही 180 डिग्री है, वही हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब इस फोटो में आप देख सकते हो एक लाइन ड्रॉ की है, थोड़ी स्लांटिंग टेढ़ी मेढ़ी की है, क्योंकि वो अर्थ के जियोग्राफी फीचर्स के कारण वो लाइन एग्जैक्ट सीधी नहीं बनी है, और यही हमारा 180 डिग्री लैटिट्यूड है और यही हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो अर्थ पे सारी ग्रिड्स दिखाई है, उसमें इस लाइन को थोड़ी सी आगे पीछे की है, क्योंकि कुछ ऐसी प्लेसेस है उसके जियोग्राफी को ध्यान में रख के ये लाइन इस तरह से ड्रॉ की है, और यही हमारी 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको फिर से ये रिपीट करवा दी हूँ कि ये जो 7 लैटिट्यूड्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर जो हम क्लाइमेटिक जोन पढ़ेंगे वो इसी सारे
लेटीट्यूड्स पर से ही याद रखने हैं। तो आप इस डायग्राम को खास याद रखिएगा। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये हमारे मेन इम्पोर्टेंट 7 लेटीट्यूड्स है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।